ان کو جو دالیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈلی پھر یہ ہے کہ اگر ان کو انڈے سے الرجی نہیں ہے تو انڈا بھی آپ کو کمپلیٹ پروٹین دیتا ہے, تو پروٹین کا پورشن تو سیٹسفائی ہو جائے گا, ٹھیک. اور اگر ملک سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے, جو لائک ملک لیکٹوز انٹالرنس ہے, تو سوئے ملک کی طرف ہی آ سکتی ہیں, جو کہ کمرشلی اب ملنے لگا ہے. لیکٹوز انٹالرنس کا یہ بھی ہوتا ہے نا سر, آپ کو پتہ نہیں آپ نے بتایا تھا شاید ایک دفعہ کہ لیکٹوز انٹالرنس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ شاید پیور ملک نہیں لے سکتے لیکن آپ اس کے پروڈکٹس لے لیتے ہیں, دہی لے سکتے ہیں, یوگرٹ ہے نا, جی کریکٹ. تو آپ یہ آلٹرنیٹ آپشن جو ہیں یہ ٹرائی کر کے دیکھیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جس شوربے میں بنائے وہ ہلکا سا اس کا شوربہ بھی نہیں لے سکتی جو گوشت جس میں ہے. اچھا, یہ بھی پاسبل ہے کہ دیکھیں اگر وہ الرجی سے اگر وہ ایک دفعہ سفر کر چکی ہیں تو یہ سائیکالوجیکلی بھی ہوتا ہے کہ ایک اندر سے ایک فیئر ہوتا ہے کہ میں یہ لوں گی میری طبیعت خراب ہو جائے گی, ایک سائیکالوجیکل فیکٹر بھی آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ تھوڑا سا اریٹیٹ ہوتا ہے بندہ کہ اللہ نہ کرے میری طبیعت خراب ہو جائے کہ لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا, مجھے دوبارہ سے اگر مجھے اٹیک ہوگا تو میں کیسے اس کو سروائیو کروں گی, یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن سالن میں یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ گوشت کا ایکسٹریکٹ سارا سالن میں آ رہا ہے جب وہ پک رہا ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے. نکل کر آ رہی ہے. کیا کمپوننٹ ہوتا ہے سر گوشت میں ایک ایسا جس کی وجہ سے اس طرح کی پرابلم ہو رہی ہے؟ گوشت سے جو الرجیز ڈسکرائب کی گئی ہیں اس کی وجہ ایک بڑی حد تک there is a certain carbohydrate present in the meat. اچھا. اور that is generally responsible. That's not fat. No, that's it's some not carbohydrate. fat. It's a carbohydrate component of the. Am I right on that? سر دیکھیں اچھے سے اتنی اچھے سے بات بتاتے ہیں کہ وہ ہر چیز کنفرم کر کے بالکل اس میں. ہاں جی سر, یہ کیا کاربوہائیڈریٹ کا کون سا کمپوننٹ؟ جی یہ مجھے I haven't yet assessed on that, لیکن there is a carbohydrate component. گوشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پروٹینز اور فیٹس ہیں, اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ کا ایک کمپوننٹ موجود ہے. انفیکٹ سر سوری آپ کو کٹ کر رہی ہوں, کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ ساتھ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ٹیمپریچر بھی مینٹین نہیں کرتے جب ڈیورنگ آپ کوکنگ پروسیس ہوتا ہے, کہ وہ ٹینڈر نہیں ہوتا ہے, تو یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ ان کو الرجی سمٹم اس وجہ سے بھی ہو رہے ہوں. یوزلی لوگ کھاتے ہیں سافٹ نہیں کھاتے ہیں, اس کو سالڈ لینا چاہتے ہیں, لائک گوشت پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پراپرلی اس کے ٹیمپریچر پہ کوک کریں گے تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا ایک فیکٹر کہ آپ جب کھا لیا پکاوا تو وہ ایزیلی ڈائجسٹ ہوگا, ہر چیز کا ایک میکینزم ہے, تو اس کو اسی طریقے سے اویل کریں, تو یہ ایک پاسبلٹی بھی ہے. یہ ایک پاسبلٹی تو ہے ڈیفینیٹلی. اچھا سر, اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن آگے بڑھائیں, میں نے آج ایک پول کا سوال کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے سنا ہی ہے, تو میری سب سے پہلے آپ بتائیے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا کریں وہ بیچاری, کیا کریں؟ پلس دیکھیں تھوڑا سا سوسائٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈائٹ کنٹرول کریں, پلس اللہ پہ فیتھ رکھیں, انشاءاللہ جو ہوگا بہت اچھا آئے گا. مطلب ڈائٹ تھوڑا کنٹرول کریں, اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کیجئے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس معاملے میں ایک تو ایموشنل کمپیٹیبلٹی اپنی ڈھونڈیں, جہاں یعنی صرف دوسری چیزیں ہی نہیں, اپیرنس ہی نہیں, لیکن ایک ایموشنل کمپیٹیبلٹی بھی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اور دس از جسٹ ٹاکنگ ایز اے لیمن, ناٹ ایز اے فزیشین. ہم ایز اے لیمن ہی پوچھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو اوور ویٹ ہونے کے نقصانات ہیں اپنی جگہ پہ, وہ اپنی جگہ پر ہے. بالکل they can't help it, ان کی فیملی ٹینڈنسی ہے. بالکل ہے, no doubt یہ کچھ بھی کر لینا, کتنی بھی محنت جتن کچھ بھی کر لیں وہ نہیں کم کر پاتے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کا جو کانسیپٹ ہے کہ اس کے اندر ایکسرسائز, اپروپریٹ ڈائٹ, یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ایک ہر آدمی کا ایک آئیڈیل باڈی ویٹ ہے, اور جینڈر کے حساب سے بھی ڈفرینسز ہیں, وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کو ایز اے ہول سب چیزوں کے ساتھ دیکھنا ہے, یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ جب ہم رینج کی بات کرتے ہیں آئیڈیل باڈی ویٹ کی کہ اینی تھنگ فرام 19 to 25 از نارمل, تو ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے ہی ہوتا ہے کہ کس اس کے اندر. سر 25 ہم بول تو دیتے ہیں, لیکن 25 میں اگر ہم ویسے دیکھیں تو کتنا بلکی ہو جاتا ہے انسان. 23 کے بعد ہی وہ اچھی خاصی. اس میں ہائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جینڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بلڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لائف سٹائل پہ, ایتھنک فیکٹرز پہ, ریشیل بیک گراؤنڈ کے اوپر, بہت ساری مختلف چیزیں. ہاں یہ تو ہے, اس طرح چیزیں ویری کرتی ہیں. ویورز آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس پول میں, ہاں نہیں آنسر ضرور کریے گا, ضرور کیجیے گا. اور بہت امپورٹنٹ ہے, اس وقت وہ بھی دیکھ رہی ہیں جن کا یہ سوال ہے, اور ہم لوگ بھی ان تک آپ کے جوابات پہنچائیں گے. ہمارے پاس ایک کال ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ مجاہد بات کر رہا ہوں, مجاہد علی. جی مجاہد صاحب, کہاں سے؟
कराची से बात कर रहा कराची से बात करने क्या कहना चाह रहे हैं? हूँ। सेगमेंट से हट के बात है मैडम, मुझे सिगरेट छोड़नी है, मुझे कोई आसान हाय हल बता ला, ठीक है, सिगरेट छोड़नी है आपने। अच्छा, आपने खुद अपनी तरफ से क्या कोशिशें की हैं? दो। कोशिश तो करता हूँ, बस छूटती नहीं है। कितने सालों से तकरीबन आप 15 साल से पी रहा हूँ। हाय, कितनी पी रहे हैं दिन में? दिन में एक क्या दिन में 20 एक पैकेट पी जाते हैं? yes। हाय अल्लाह, सर डराएं जरा इनको, कुछ बताएं जरा इनको। हम जी आपके अभी बताते हैं मुजाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाय देखिए कैसे कैसे मतलब होता है, लोग एडिक्शन इस तरह की छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट सर छुटती नहीं है। जी, एडिक्शंस और डिपेंडेंस ऑन वेरियस थिंग्स, मेरा ख्याल है इस पे तो एक अलग प्रोग्राम की ज़रूरत है। इनकी अभी थोड़ी सी हेल्प कर लेकिन दें इन ब्रीफ नटशेल मैं ये बता सकता हूँ कि सबसे पहले तो एक कमिटमेंट विल होना ज़रूरी है। आप इस चीज़ का एहसास अगर करें कि ये आपकी सेहत के लिए मुज़िर है और इसे छोड़ना है, वो कमिटमेंट, उसके बाद पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट निकोटीन एडिक्शन, आजकल बहुत सारे डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, मौजूद हैं, हाँ। ऑल्टरनेट्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। ई लाइट एक सिगरेट है जो कि नकली सिगरेट है, असली नहीं है। वो भी तो है ना सर एक? नहीं, इसके अलावा निकोटीन गम के फॉर्म में आती है, पैच के फॉर्म पैच में के आती फॉर्म में है, आती है। और इसके अलावा एक और दवा है शेंटेक्स के नाम से, अब अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है अच्छी फार्मेसीज़ पे, लेकिन बराए करम उसको खुद ना लें, डॉक्टर से मशवरा अच्छा, करने कहते के हैं बाद। निकोटीन की एडिक्शन अपनी जगह, दूसरा नुकसान पहुंचता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके पेपर से जल के निकलती है, जो नहीं, पेपर होता है उसका। इसमें कई लोगों को ये नहीं पता कि जब सिगरेट बनती है तो इट्स नॉट जस्ट अ टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें सैकड़ों केमिकल्स यूज़ किए जाते हाँ, हैं, ये भी है। इंक्लूडिंग नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अदर गैसेस। और जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिगरेट बर्न होती है तो एटलीस्ट 500,000 केमिकल कंपाउंड्स आर जनरेटेड। कुछ के बारे में हाय हमें अल्लाह, मालूम और है, वो भी जैसे टॉक्सिन। आपने मोनोऑक्साइड का हाँ। जिक्र किया, निकोटीन का जिक्र किया, लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जो उसमें मौजूद होती हैं टार में। तो जब टार कंटेंट या निकोटीन कंटेंट हम सिगरेट का देखते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन इंग्रेडिएंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 500,000 थिंग्स विच आर देयर, केमिकल्स, वेरी डेंजरस वंस। निकोटीन की डिपेंडेंसी अपनी जगह, निकोटीन तो आप और सोर्सेज से भी पूरे कर सकते हैं। वो होता है ना कि कहते हैं कि 48 आवर्स तक वो आपकी बॉडी में रहने के बाद आपको एकदम अर्ज होती है उसकी, इस तरह उन लोगों को चाहिए होती है जो स्मोकर्स होते हैं। तो इसके लिए आप निकोटीन पैचेस, निकोटीन च्युइंगम्स, ये ऑल्टरनेट यूज़ करें, ठीक है। और बाकी जो उसके नुकसानदेह और ख़तरनाक, सर ने बताया ना 500,000,000 चीज़ें और हैं जी, वो 500,000,000 चीज़ों को आप इस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि आप ये चीज़ यूज़ कर लें इंस्टेड कि आप जाके वो से। बस सर एक और बड़ी बुरी बात इसमें ये है, वो हाथ में पकड़ने की एडिक्शन। हाथ में जब तक उनके, मैंने बात की है ऐसे लोगों से, वो कहते हैं जब तक ये हाथ में उंगलियों के बीच में कुछ नहीं होता उनको, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता सर, दे कांट लिव विदाउट इट। उनको लगता है कि दिस इज देयर कंपेनियन, दिस इज देयर पार्टनर, और अब वो बोर जहाँ हो रहे हैं वो निकाल लिया, अकेले बैठे हैं जब बोर हैं, कुछ सोच रहे हैं निकाल लिया, हर चीज़ के लिए वो लोग इस तरह डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जी। हमारे पास एक और कॉल है, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद गुलजार साहब गुजरावाला। जी गुलजार साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जी, क्या कि कहना मैं चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ हम्म। कि जो हनी है शायद ये बहुत फायदेमंद इंसान की सेहत के लिए है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम जब भी कौन हनी सी मैं यूज अशिया, करता कौन हूँ, सी अशिया की बात बता रहे हैं? शहद शहद शहद, शहद, हाँ हाँ। तो जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी सांस वाली नाली में इन्फेक्शन सी खुबाक आने शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, सूट नहीं करता। और जब कोई एसेंस वाली चीज या मिठाई वगैरह कोई ऐसी चीज में एसेंस इस्तेमाल होते हैं वो खाता तो जुकाम हो जाता है। कौन सी वाली चीज लेते हैं तो जुकाम हो जाता है? मतलब कोई मिठाई या कोई बेकरी कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें एसेंस की खुशबू वगैरह का इस्तेमाल होता है ना। अच्छा अच्छा, बेकरी और मीठी प्रोडक्ट्स इस तरह हो जाता है हाँ, आपको? तो उसमें उसको फौरी तौर पे जुकाम हो जाता तो है एट द सेम टाइम। अच्छा, चलिए जी, हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, जहाँ ये तक मैं इनका शहद सवाल- से एलर्जी और कोई भी एक तो शहद से इन्हें एलर्जी हो जी, रही है, जी, ठीक है, जी। और सांस की नाली उनकी बंद होने लगती है। दूसरा, बेकरी की अशिया जब भी वो खाते हैं, मीठी अशिया खाते हैं, तो उससे उनको जुकाम हो जाता है। जी, ये जो इन्होंने कहा ना कन्फेक्शनरीज जिसे हम कहते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स,
इनमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, वी नो इट, फ्लेवरिंग के लिए एसेंस डिफरेंट यूज़ होते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि जो कॉमन एसेंस वगैरह हैं उनसे एलर्जी हो। इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि फूड इंग्रेडिएंट्स में ही शामिल होता है, उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। तो ये अगर ख़ास तौर पे सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ है तो ज़्यादा चांस इस चीज़ का है कि ये कोई ना कोई केमिकल जो इस्तेमाल हो रहा है इन प्रोडक्ट्स के अंदर फॉर फ्लेवरिंग एज वेल एज फॉर कीपिंग इट्स फॉर्म, उसको एक सिट्रिक एसिड यूज होते हैं मुख्तलिफ, या प्रिजर्वेटिव्स हैं या एसेंसेस हैं वनीला या डिफरेंट चीज़ों के, आजकल तो तो उन फ्लावर्स की भी चीज़ों बहुत सारी टाइप आ गई हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनसे हो सकता है, या कलरिंग एजेंट्स मुख्तलिफ यूज़ होते हैं कलर देने के लिए, उनसे बहुत कॉमनली एलर्जीज होती है। तो अगर ये इन्होंने नोट किया है कि बेकरी प्रोडक्ट से ये होता है, बेस्ट चीज़ यही है कि अवॉइड। लेकिन मैंने जो चीज़ आज तक नहीं सुनी, उन्होंने बोली शहद से एलर्जी, शहद से एलर्जी होती है लोगों को। मैं अभी मतलब फर्स्ट टाइम सुनी हूँ। ये पॉसिबल ये भी हो सकता है कि उस अगर शहद प्रिजर्वेटिव उसमें भी अगर ऐड होते हैं तो शिफा ही जो कहते हैं नहीं, देखिए वो उस वक्त प्योर शहद, प्योर शहद की बात, अगर प्योर है तो फिर शिफा है, वरना अगर अगर हम ये जो बॉटल में ले रहे होते हैं तो उनमें भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, और वो भी चीनी से ही बन रहे होते हैं। तो जैसे कन्फेक्शनरी की बात आ रही है तो वहाँ पे भी देखें चीनी यूज़ हो रही है और भी प्रिजर्वेटिव्स और भी कलर्स भी ऐड हो रहे हैं। शहद को कलर देने के लिए भी कलर्स दिए जाते हैं, ठीक क्या है। पता इसमें कोई ऐसे सैकराइड्स हो जो शहद में भी हैं और कन्फेक्शनरीज में भी हैं जिनसे उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट से इनको हो, ऐसा हो सकता है। ये भी पॉसिबल है ना? क्योंकि ये जैसे कह रहे हैं कन्फेक्शनरी से, शहद से, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को लिंक कर रही है ना, इंटरलिंक तो हो रहा है इन दोनों चीज़ों का आपस में। तो है, तो क्या करना चाहिए? अवॉइड करें, डायबिटीज नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ऐसा भी तो है कि अगर हम लोग एंटी एलर्जी का कंपोनेंट है ना इसमें, टोटल एंटी एलर्जिक अगर हम डेली बेसिस पे लें तो तब हम ये चीज़ें खा पी सकते हैं, ऐसा हो सकता है? कोई ऑप्शन है? बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में। जैसे मिसाल के तौर पे कई लोग मिल्क से इंटॉलरेंट होते हैं, तो हम कहते हैं कि जी लैक्टेड के नाम से एक कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसमें अगर आप उसकी टैबलेट्स पहले ले लें तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुमकिन है, बिल्कुल हो सकता है कि आपको टेम्परेरी रिलीफ इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ के लिए टॉलरेंस आपकी हो जाए। इसके अलावा फिर दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस करती हैं, जैसे सांस की नाली बंद हो रही है और जिसे हम एनाफिलेक्सिस या एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं, तो अगर इस तरह का सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, बेहतर ये है कि अवॉइड कीजिए, अवॉइड किया जाए। ठीक है सर, हमारे पास एक कॉल है, एक अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात। डॉक्टर अनवर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? अच्छा डॉक्टर अनवर, आपने ईद का विश तो वैसे किया था, मुझे याद है। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो आपको ईद मुबारक अगेन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज चूंकि फूड एलर्जीज के ऊपर बात हो रही और इसी को फोकस करेंगे, और फूड एलर्जीज के बारे में मैं आपसे दो बातें अर्ज कर दूं। एग और फिश तो है ही कॉमन, क्योंकि एग से और फिश से, और उसके लिए कोई आप अल्टरनेटिव भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग भी आपको मार्केट से ही बाई करना पड़ेगा और फिश भी। तो अगर आपको उससे एलर्जी होती है तो उसको तो फिर आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना होगा। लेकिन एक चीज जो हमारे यहाँ सीरीज में है वो ये है कि जितने भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो ड्रिंक्स की शक्ल में मुख्तलिफ ब्रांड्स के ड्रिंक्स हों, चाहे वो कॉन्फेक्शनर आइटम्स हों, उन सब के अंदर जो है वो प्रिजर्वेटिव एजेंट्स और कलरिंग मटीरियल होता है, और उसके अंदर किसी से भी आपको एलर्जी हो सकती है। अब कोशिश ये होना चाहिए कि जब हमारा कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है तो व्हाई नॉट वी हैव टू गो एंड जस्ट टू बाय द फ्रेश फ्रूट्स एंड प्रीफर टू गो एंड जस्ट टू हैव फ्रेश फ्रूट्स। और सेम विद द वेजिटेबल्स, जब उसमें ना आपको कोई प्रिजर्वेटिव मिलेगा जब आप खरीदेंगे बाजार से, ना उसमें कोई केमिकल होगा, ना कोई कलरिंग मटेरियल होगा। तो अगर आप वो चीजें यूज करेंगे तो आपको एलर्जी के बहुत ही कम और मिनिमम चांसेस क्या बल्कि होंगे ही नहीं। तो एक तो कोशिश हमारी ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिंबल है, सिस्टम है और स्टेटस को है कि भाई फलाने ब्रांड का जूस पिए। देखिए जब कोई भी ब्रांड का जूस आप लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव एजेंट ना हो, वरना वो खराब हो जाते हैं। तो उनको हालांकि उनके ऊपर लिखा होता है नो वो लिखा होता है कि 100% प्योर, लेकिन वो 100% प्योर नहीं हो सकते।
क्योंकि ये हमारे पता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि एक चीज ये कि जो अगर आपने कोई एक अनयूजुअल सी चीज जो है अपनी डाइंग में ली है और आपको महसूस हुआ उसी वक्त खाने के बाद कि आपको कोई रैश हो रहा है या आपको कोई किसी किस्म की नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई जो कि इससे पहले नहीं होती थी और आप फौरन रिकॉग्नाइज कर गए कि मैंने ये चीज खाई है, तो उसकी अगर माइल्ड है तो फिर वो कोई भी एंटीहिस्टामिन से कवर हो जाती है, लेकिन मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। अगर कोई बहुत ही सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रहा है तो यू हैव टू गो एंड जस्ट टू कंसल्ट इन अ हॉस्पिटल, क्योंकि बाद औकात ऐसी भी, लेकिन होते रेयरिटीज में है, ऐसे कॉमन नहीं होते ऐसे केसेस, लेकिन बाद औकात रेयरिटीज में ऐसे आए हैं केसेस कि उसको फौरन आईसीयू में शिफ्ट किया गया और फिर उनका पूरा मैनेजमेंट हुआ। अच्छा। तो एक चीज थोड़ी सी हमें अपने मेंटली अलर्ट रह के किया जाए तो फिर मेरा ख्याल कोई चीज प्रॉब्लम नहीं करेगी और आप एक कंफर्टेबल तरीके से आराम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर अनवर। आके बड़ा ही प्रिसाइज ओवरव्यू देके गए, तो इससे मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि अभी हम रेड मीट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल खाया जा रहा है, लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। सही है सर, सही है डॉक्टर? ठीक है जी। पोल का आंसर आप लोग ज़रूर कीजिएगा, हाँ या नहीं में। हमें पोल के आंसर का जो है बहुत शिद्दत से इंतज़ार है, और उन खातून को भी है वो बैठ के इस वक्त देख रही हैं, 26 ईयर ओल्ड हैं, शादी नहीं हो रही क्योंकि वो बल्कि हैं, तो वो सिर्फ ये मालूम करना चाह रही हैं कि क्या वो शादी के लिए वेट लूज़ करें या फिर वो राइट पार्टनर का वेट करें, हाँ या नहीं। हाँ या नहीं में आपको आंसर करना है। छोटा सा ब्रेक है जी, वापस आ रहे हैं।